ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੁਲਫੀ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਬਖਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 13 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 1988 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 34 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਬਾਇਆ ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ब्यूरो रिपोर्ट P9 न्यूज़। आप अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान के जो कुछ आतंकवादी बताए जा रहे हैं हिंदुओं पर हमला किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो जी बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं कह रहा हूँ,
जे पाकिस्तान का जो पढ़ाई है, जो मदरसे हैं, उनकी शिक्षा है, उनकी उल्टा शिक्षा है। मैं 7 साल का था, फिर मेरे को इस इंटरव्यू में बात याद आ गई, ये दांत टूटता है बच्चे का। मैं स्कूल गया था तो मेरे को मास्टर इतना मारा था, उसने क्या था जी, आप नमाज पढ़ो। मेरा छोटे लावी दिमाग खराब था। मैं कहता हूँ, लोग आत्मा तो कहती है सही रहा, तो लोग कहते अरे पागल हो रहा था तू। वो मारते थे। मैं कहा जी मेरे से नमाज जब मुंह से नहीं निकलती मैं करूँ क्या। 3 दिन स्कूल गया था, चौथे दिन मैं स्कूल भी छोड़ दिया था। मैं नहीं आता, काफिर बोलते थे मेरे को। अब ये हमला हुआ है, आप कैसे देखते हैं? धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में भी यही हाल था। अरे आप समझो, मैं इस घर में बैठा हूँ रतनगढ़, अगर रतनगढ़ मेरे को कोई मारता है तो रतिये छोड़ेगा वो मेरे को। बहुत ज्यादा, ये बहुत निंदा की बात है, बहुत निंदा की बात है। मैं तो टीवी चैनल लगा के भी हाथ बांधता हूँ, बेनती करता हूँ भाई इस विषय को ना छोड़ो, इस विषय को तो आतंकवादी को खत्म करवा के फिर जाके घर बैठो। ता हिंदू धर्म के मानने वाले होता, इसको खत्म करा के फिर जाके बैठो। आप एमपी रहे हैं, किसकी सरकार में एमपी वहां पर रहे थे, और क्या आपके साथ किस तरह की जाति होती थी? बेनज़ीर की हुकूमत चली थी जी, बाद में चलती रही 2.5 साल, उस भी बेचारी को मार दिया था। तो वहाँ मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, बेनती करके मेरा उन्होंने नाम मिटा दिया। कागजों में भी आज अगर देखते हैं तो वह नाम ही ख़त्म कर दिया, भाई कुछ नहीं है। वो काफिर गया तो गया। मैं कट्टर एक मशहूर था उस जिले 2 जिलों के भीतर, पूरे पंजाब के भीतर, भाई जे अल्लाह डिवाया अल्लाह बोलते थे, डिवाया ना राम ना लगाते थे। राम तो मैं पता नहीं, मैं मेरे को पता है वो राम सच्चा था, मेरा नाम के ऊपर राम टिका आके, वो राम ना बोलने देते थे। बहुत अत्याचार है जी वहाँ बेनज़ीर की हुकूमत में। मैं कौन से सन की बात है जी? वो जी ये 90 से 1। और आप इंडिया कब आए हो जी? किस सन में आए? सन 2000 में। अब नागरिकता मिल गई है आपको? क्या है, आपके परिवार को कुछ नागरिकता मिली है? नागरिकता जी मैं तो 1 महीने के वीजे पे आया था। जो मेरा मन या आत्मा दिल सच्चा है, मैं उस टाइम ही आवाज उठाया था। डीसी साहब खोलर था रोहतक के भीतर, उसने कहा जाना पड़ेगा। मैं जी 1 महीने का वीजा है, जहाँ आग में तड़फ के मरूंगा, वापस ना जाऊंगा। आज भी पक्का हूँ, प्रशासन भी की देन है, पूछताछ करते रहे। तो एक तो दुख की घटना याद है, अमृतसर तक गाड़ी ले गए थे छोड़ने खातिर, फिर भी CS रहो एसपी साहब था। तो मैं उसके भी आगे निवेदन करता हूँ, कहीं बैठा मेरा आवाज़ सुन रहे तो वो ही डिवाया राम हूँ जो मेरे को कहता था जाना पड़ेगा। फिर उसने गाड़ी वहीं वापस ले आया था जहाँ उठाया था। 500 रुपये भी मेरी बिटिया को 3 साल की थी उसको दे गया। आपको मान्यता कैसे मिली, नागरिकता कैसे मिली? नागरिकता जी ये मिली जो पूरे देश के भीतर मिल रही है या कुछ मिलने वाली है। जो भारत सरकार ने एक CA कानून पास करा तो उसके तहत उसके भीतर आ गया। तो आप अब इलाज क्या आप देख सकते हैं? पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? पाकिस्तान का इलाज तो यही करना है, एक भाई जमाई भाई को भाई नहीं समझता तो बस 2-4 आदमी इकट्ठे करके उसका गला मरोड़ के खत्म कर दो। पाकिस्तान का नाम ही मिटा दे सरकार। जब एक देश है एक ही देश कर दे, आप पे लड़ते भिड़ते रहेगा भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे जी आप? मैं तो जी निवेदन करता हूँ, पत्रकारों ने बहुत बहुत तकड़े बड़े बड़े आदमियों को मिला दिया, मुख्यमंत्रियों को। तो एक निवेदन इनके आगे आती जोड़ के करता हूँ, ये मेरा विषय वहाँ पहुँचा दें तो मेरे को एक बार दफ्तर में बुला के ना पूरी तलाशी करके, हो सकता है भाई पाकिस्तान का महिला आदमी है, मेरा अंदर साफ है। जैसा गऊ माता है ना, कमजोर होती है, शक्ल की माड़ी होती है, कहीं दूध देने वाली ठीक होती है। हिंदू तो सारे आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री के आगे, वो बहुत बहुत गरीब लोगों से, मेरे से भी गरीब, मैं क्यों अमीर कहता क्यों, एक तो दिल अमीर है, एक जो मैं MP के नाम पे चला गया हूं तो MP में वहां था, जाना था, खत्म कर दिया कागज में। भारत सरकार ने मेरे को MP बना दिया पत्रकारों ने। मैं फिर निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री के आगे, एक बार यहाँ भी मेरे गले के साथ गला मिला ले तो मैं सांस निकल गया तो जो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जैसा गुरु गोबिंद सिंह ने कुर्बानी दी थी ना, वो बच्चे चिने गए सी दीवार, आज ओदा ना चलता पे, जो मेरा गला उसे मिल जाऊगा, सांस निकल जाऊगा, कोई गल नहीं, ना चलता रहूगा भाई डिवायरा वाक्य पाकिस्तान चढ़ गए थे। आया अब आप गुजारा कैसे कर रहे हैं जी? परिवार का गुजारा तो कुल्फी बेच के कर रहे हैं जी। आप भी देख रहे हो, घर बार देख रहे हो, हमारा गली देख रहे हो। वो गली जो ऐसी है, कहते हैं ये गली मशहूर है एक्स MP की। यहाँ मैडम दुग्गल जो आई थी ना घर, 2 बार आई थी। मैं मैडम जी मेरे को क्यों तंग करती है, ये आ गई तुम, वो कहती है बस आप आशीर्वाद दे। यहाँ रतनगढ़ के भीतर ना, मैं ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको एक वोट ना डल रहा था। मैं एक बार हाथ बांध के बेनती कर दी, मैं अगर किसी का मन करता है, मोदी सरकार ने काम अच्छा करा है तो ये MP बनी थी भी लोग रुसे हुए हैं तो रतनगढ़ के भीतर कुछ वोट डाल दो। उसमें 280 वोट डाला था जी। मोहल्ला बड़ोली से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, उसने गले से गला मिलाया
जो मेरी दुख सुना, दुख के ऊपर उसने बहुत मेरा मन खुश करा। उस रह मैं अभी अभी सब अधिकारी के साथ मीटिंग करके आपका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। आपको कोई उठाने वाला नहीं है, बस जैसा सच्चा आदमी है ऐसा सच्चा रहेगा, कोई नहीं वापस तेरे को। कितने लोग हैं जी आपके परिवार के? मेरे परिवार के यहाँ 23 लोग हैं, को यहाँ की बेटी बहू, वहाँ के 11 लोग हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक बोले जाते हैं ना, वो 11 हैं। तो आपकी मांग अब क्या है अंत में भी सरकार से, केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से क्या मांग रखते हैं जी? सबसे मांग तो यही है जी मेरी, अगर कुछ अनाज छोटी मोटी है मेरे नाम की, कोई सर्टिफिकेट कोई रुका हुआ है, एक तो वो जल्द से जल्द भेजे। बार बार वही मांग कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री इसको मिला हूँ, चौटाला साहब को मिला हूँ, हुड्डा साहब को मिला हूँ, शीलाध्यक्ष मुख्यमंत्री थी उसको मिला हूँ। एक प्रधानमंत्री जी के साथ एक भी सेकंड की अगर दर्शन हो जाए, बातचीत हो जाए, तो उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत बहुत पत्रकारों के भी, पूरे समाज का भी।